تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی تاریخ ہے 13 مئی 2022 اور ہمارا موضوع ہے غزل، اور ایک غزل لکھی ہے شہریار نے۔ شہریار ایک مشہور غزل کو شاعر ہیں، انہوں نے بالی ووڈ کی فلم کے لیے بھی گیت لکھے ہیں۔ آج ہم ان کی ایک غزل یہاں پہلے پڑھیں گے بلند خانے کے ساتھ، اور اس کے فوراً بعد ہم اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ غزل کا مطلب ہے زخموں کو رفو کر لیں، زخموں کو رفو کر لیں، دل شاد کریں پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے، مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کریں پھر سے۔ تو شعر ہے مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر، مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کریں پھر سے۔ تو آخری شعر ہے اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کریں پھر سے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم ان اشعار کی تشریح کریں، ہم دیکھتے ہیں کچھ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے کیا معنی ہیں۔ رفو کرنا، سیلے، جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے ہم رفو کرتے ہیں، اس کو سی لیتے ہیں، پائبند کرتے ہیں۔ رفو کرنا، پائبند کرنا۔ پھر شاد، شاد خوش، شاد کرنا، خوش کرنا۔ اس طرح آباد کرنا، بسا، آباد کرنا، بسا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مدت ہوئی یعنی ایک عرصہ ہوا، ایک زمانہ ہوا۔ جینا، زندہ رہنا۔ اس طرح لفظ ہے تقاضا کرنا۔ میں ان الفاظ کو بطور فعل یہاں استعمال کرتا ہوں کیونکہ شعر میں بھی یہ بطور فعل استعمال ہوئے ہیں۔ تو تقاضا کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا، بیداد کرنا، ظلم و ستم ڈھانا، بیداد کرنا، ظلم و ستم۔ مجرم کا کٹہرا، جب ہم عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے اندر ایک لکڑی کا جنگلہ ہوتا ہے جس میں مجرم کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ مانے اس طرح، جس طرح میں یہاں کرسی کے پیچھے ہوں، یہ عدالت کا وہ کٹہرا، اس طرح وہ مجرم کو بٹھایا جاتا ہے جہاں سے اس کا بیان دیا جاتا ہے۔ تو رسم کو پرانے زمانے کا رواج، ریت رواج۔ فریاد کرنا، اپنا دکھڑا سنانا۔ اہل جنون، وہ جن پر جنون طاری تھا۔ یہاں مراد لیا جائے گا عشق کے مارے عاشق مزاج لوگ۔ زنجیر بیڑی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کچھ الفاظ ہمارے پاس تھے جن کا معنی جاننا انتہائی ضروری تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں بطور قافیہ کیا استعمال ہوا۔ تو ہم آہنگ اور ہم وزن الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو میں یہاں دیکھتے ہیں شاد، یہاں آباد، پھر بیداد، فریاد، آزاد۔ تو طالبات، یہ شاد، آباد، بیداد، فریاد، آزاد، یہ ہم قافیہ اور ہم آہنگ الفاظ ہے، ان کو قافیے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد جو الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں وہ ہے کریں پھر سے، کریں پھر سے، کریں پھر سے، کریں پھر سے، کریں پھر سے۔ یہ ہماری اس غزل کے ردیف ہے۔ کیا ہے؟ ردیف اور قافیہ میں یہ فرق ہے۔ ردیف میں الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، قافیہ میں صرف آواز ملتی ہے اور آہنگ ملتی ہے، الفاظ دہرائے نہیں جاتے۔ غزل کے پہلے شعر کو ہم جانتے ہیں، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ یہ اس میں ردیف اور قافیہ دونوں مصروں میں پایا جاتا ہے۔ تو آئیے آسانی کے ساتھ اس غزل کی اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔
जख्मों को रफू कर लें, दिल शाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। शायरी में गजल में एक किरदार होता है, एक अगर नस्र में होता तो उसे रावी कहते, मगर शेर में होगा तो इसे शेरी किरदार कहते। तो यहाँ शेरी किरदार अपने हमदम से मशवरा करता है। शेरी किरदार अपने हमदम को, अपने साथी को मशवरा देता। क्या मशवरा? जख्मों को रफू कर ले, आओ मिल बैठे और जख्मों को सी ले। जिस तरह कब पायबंद करते हैं जिन पर हमारे जो जख्म लग चुके हैं, आओ उनको मलहम लगाएं, उनको उनका इलाज करें। ठीक उसी तरह जिस तरह फटे कब्रों पर हम पायबंद लगाते हैं। दिल शाद करें फिर से, एक और तरीका करते हैं, हम दिलों को खुश करने की कोशिश फिर से करेंगे। ये जो दिल है आज तक रंजीदा हो चुकी है। हाँ, हम जख्मों को सी लें, दिलों में खुशी के साथ फिर जगाने की कोशिश करें। ख्वाबों की नई दुनिया छोड़ो पुरानी बातें, पुराने ख्वाबों को क्या हुआ, अब ख्वाबों की एक नई दुनिया हम बसाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी तशरीह हुई, शायर अपने महबूब से, अपने हमदम से कहता है कि आओ एक बार फिर मिल बैठे और पुराने जख्मों को भुलाए और दिल को फिर से खुश करने की कोशिश करें और इसके बाद नए ख्वाब देखें और वही ख्वाब हम जी के आगे बढ़ें। तो प्यारी अब दूसरा शेर देखते हैं। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता। शायर कहता है कि एक अरसा हुआ, अब हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम जीते हैं कि मारे, क्योंकि हमें जीने का कोई एहसास ही नहीं। दिल उनसे तकाजा कर, अब इस वक्त शायर अपने दिल से मुखातिब होकर कहता है, दिल को पुरसारिफाई करता है। शायर इसे तस्लीम करता है, क्या कहते हैं? वो दिल को ऐसे मुखातिब करता है कि मानो कि दिल भी एक इंसान है, सुनता है। तो इस शेर में शायर दिल से बातें करते कहता है कि एक अरसा हुआ, मुझे तो पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूं कि मर चुका हूं। आपको क्या लगता है, मेरे दिल जिंदा हूं कि मर चुका हूं? दिल उनसे तकाजा कर, ऐ दिल मेरा कासिम बन जा, मेरे महबूब बन जा और उससे कह कि बेदार करे फिर से जुल्म सितम मुझ पर ढाए। जब मेरा महबूब मुझ पर जुल्म सितम ढाए, मुझे हिज्र के अजाब में मुब्तला करे, तू भी तड़पना शुरू कर देगा, मुझे भी जिंदगी का एहसास होने लगेगा। अब देखते हैं तीसरा शेर। मुजरिम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो और रस्म को हम ताजा फरियाद करें फिर। सीधी सी बात है, इस शेर का मुखातिब अव्वल है महबूब। शायर अपने महबूब से कहता है कि मुजरिम के कटहरे में है मेरे महबूब, आप अपनी अदालत सजा वहां मुझे मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर तमाम इल्जाम मुझ पर डाल लो कि मैंने ये तमाम गलतियां की, मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया। आप अपनी अदालत को सजा, मुजरिम के कटहरे में ऐ मेरे महबूब, मुझ अपनी अदालत सजा और वहां मुजरिम के कटहरे में मुझे खड़ा कर दो। फिर हम पहले भी फिर यहाँ लाफिज बताता है कि पहले भी आपने ऐसा किया। लाफिज फिर ये जतलाता है कि पहले भी ऐ मेरे महबूब, आपने तमाम जो इल्जाम मुझी पर धर लिए थे, एक बार फिर अपनी अदालत सजा और वहां तमाम इल्जाम मेरे सर डाल हो, रस्म को ताजा। पुरानी यादें तो ताजा इसी से हो जाएंगे। ये तो पुराने अयाम से होता रहा है। जो भी आशिक मिजाज लोग हुआ करते थे उन पर इल्जाम धर लिए जाते थे, और आज जब आप ये करोगे तो एक पुराना रिवाज फिर से जिंदा होगा। फरियाद करें फिर हम आपसे फरियाद करेंगे, अरे हम मुजरिम ठहराए गए, अब आप हमें कोई सजा दो, जजा दो, ये आप तक है। हम आपके सामने तड़पते रहेंगे और अपनी रिहाई के लिए फरियाद करते रहेंगे। तो आखिर ये ऐ अहले जुनूनी को संजीर ये साए, हम कैसे उन्हें सोचो आजाद करें फिर से। शायद अब मुखातिब करता है अहले जुनून से, आशिक मिजाज लोगों से, वो जो महबूब के सितम ज़दा है, उनसे कहते हैं कि अहले जुनून आप ही बताइए, जंजीर ये साये, जो हमारे साये हैं, जो हमारी परछाइयां हैं, वो हमारे पाँव की बेटियां बन चुकी।
अरे अहले जुन्नू, ए आशिक मिजाज लोगों, आप खुद तो देखो, जो हमारी परछाइयां हैं उन्होंने हमें हमारे कदम रोक रखे हैं, वो हमारे अहम की जंजीरें बांध चुके हैं। हम कैसे इन्हें सोचो, ये मेरा ही मसला नहीं, ए अहले जुन्नू, ये आपका भी मसला है। हम कैसे उन्हें सोचो, आप मिल बैठकर सोचें, इसका कोई नतीजा निकाले, इसका हल निकाले, आजाद तरीके से हम अपने पाँवों को, हम अपने टांगों को कैसे इन जिंदगियों से आजाद करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इस गजल का मुताला किया। एक बार फिर गजल पढ़ते हैं, इसकी बुलंद करें। अब जब आप सुनेंगे तो क्योंकि अब आपको इस गजल की तालीम अच्छी तरह हो चुकी है, तो अब आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। एक बार फिर इसकी तारीफ करते हैं। मतलब है, जख्म को रफू कर लें, दिल शाद करें दिल से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदाद करे फिर से। मुजरिम के कचहरे में फिर हमको खड़ा कर दो, कोरस में को हम ताजा फरियाद करें फिर से। अहले जुनून देखो जिंजीर हुई साई, हम कैसे उन्हें सोचो आजाद करें फिर से। अजीज तलबा तलबात, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अच्छी तरह समझ आया? Yes, sir. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह कल हम एक और गजल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।